I'll be more than happy to dwell on it more. And as far as language is concerned, um, should I continue only in English, or English and Hindi both should be? English and Hindi both should be good enough. So that's what I thought from the last year's experience, that let me mix both of that. So continuing our journey, some few things will be a quick recap, but I assure you that we'll dwell on to more practical aspects as we are living, and how we can, or whatever I have been experiencing, and whatever everyone can apply and experience in one's own life. Because you are all the scholars of material management, so any science has the basic fundamental, that first we have the correct understanding of the fundamentals or the knowledge. Once the understanding is correct, automatically the application part becomes effortless. And if the application and understanding both are there, results should be there. Unless there are results, we can't say that either one of the thing is not correct, either the understanding or the fundamentals are not correct, or the application part is not correct. So with that if we can get the results effortlessly, easily in our own day-to-day living, I think we walk few miles on the path. So holistic health and happiness, uh, yeah, it's working. So, a quick recap that everybody knows that nowadays health is not only the physical health. Of course, it is the first important, but it's the body, mind, soul, all the three. Even WHO says it is physical, mental or emotional, social, and spiritual health, which really encompasses the health. So, even though I am a medical doctor, ophthalmologist, here I will be dwelling more onto the other aspects of the health, that is the mental health. Uh, a whole concept came out about the emotional quotient or the emotional intelligence, and then the spiritual health. So, second important thing, health is not the absence of disease. It is the best possible or optimum functioning of all the faculties of our self, that is body, mind, soul. All should be functioning at very good or optimal level. In fact, nowadays the scenario is reverse. Most of us, I would be really happy to look at somebody's house where the pills are not there. If any house is free of drugs, I'll be really happy. But it's very difficult to find a person who is free of pills, including myself. So how can we have the living where we can not only keep free of disease or try to, but we can have the optimal health? So disease is harmony. Whatever disrupts my inner disease ultimately results into disease. But here I want to dwell on negative emotions. If I introspect myself, do I have any negative inputs or negative effects from morning to evening? Sometimes somebody not behaving properly. Being a doctor, I have a patient, his insurance company doesn't want to give him the proper money, and there is a tussle between me and the patient and the insurance company. So how to sail through different situations? So all this negativity, stress is the first thing. Can any one of us say that I am stress free completely? If not, then we have to undergo the negative effects of the stress. How best we can reduce or get free? Clashes. Luckily, I can say that most of you will not have clashes, at least outside. About inside, I have to introspect myself, and we'll define that what are the inner clashes. Lack of harmony. We live together at home, at society, at the institution, but are we really harmonious with each other at the level of heart? Anger or hatred is against that the positive attitudes. If I can cultivate whatever, then I will have the positive impacts like friendliness, love, obliging nature, compassion. So I say to Bharti Ben that I come for my own self. I'm the biggest self. I try to become a selfish person because I try to see what is in my own benefit first. So if I can have, see, the world is going to be having both in my inner world.
So with what understanding I can convert from negative to positive ones? So normal Cousins was the person in the 17th century. In his time, all the expert doctors told him that, sorry sir, we can't do anything now, there is no remedy for your disease. He decided that, okay, now let me try. So not only he healed himself, but he moved to the all medical conferences, he himself being a non-medical person. He shared his experiences and he came out with a lovely book, Anatomy of Illness and Head First. Probably that is in a recent last 200 or 300 years, that's first documented evidence that you can heal yourself by positive attitudes. Then I came across another story, Rockefeller. Rockefeller had an incurable disease in maybe his 30s or 40s. So he thought that, okay, all this my money, and he was at that time also the richest person of the USA, having the many refineries under his control. So he said, my wealth can't buy me the health. So a different intuition came to him. He formed Rockefeller Foundations. He called his attorneys, decided to give away his wealth for the different welfare activities, formed the Rockefeller Foundation, and started devoting the funds to health, research, education, medical, and surprisingly, his health turned not only good, but he lived for almost 90 plus years. So what's the natural secret there? What changed? So that's how we are looking at. And Swastha, last time also I had said that the language reflects the development of that particular group or community of the people, and if from that perspective, if you see, our language is so much so developed. Swastha word is not there in English. We talk of Swastha. Swastha is much more than the healthier. One who knows the Swa, pure self, and remains seated in the self can only be finally, ultimately Swastha, or can be totally stress free. So that's one who knows the self and remains seated. Quick recap that all these positives and negatives going through the five senses from morning to evening, from our day in day life, how do they affect all the three components of our body, that is our self rather, body, mind and soul. One is this electrical circuitry, that is the nervous system. You send me a compliment message, even though I'm hungry, yes, my energy will be at a good level. You send me a criticizing message, even though I have a nice face, everything will go down. A laboratory sends me a report that, oh, you have such and such disease, and without death I'll be half or more died. A wise person like you comes and says, at least cross-check it, take a second opinion. Two more laboratory says, no, it doesn't seem, and I'm fine. So all the inputs affect all the cells and organs of our body through these two electrical, sympathetic and parasympathetic system. Another system is this hormonal system. Don't go into the details, but only two things. Stress releases cortisols and noradrenaline, which has negative impacts on all the parts of our body. It leads to psychosomatic diseases. The disease originates in the brain and goes to the different parts of the body, and these are the mediators, cortisol and noradrenaline. Even the immunity goes down. As against that, see what are the good and bad hormones. It has proven more than by research that if I have positive, as trying to help somebody, trying to be caring for somebody, then I secrete more positive hormones like serotonin and endorphins, which has the positive effect on everything. If I say the negative ones, then there will be negative hormones. This also was taught last year, that we have the energy body. We have three bodies: gross body, energy or vitality body, and the causal body. The causal body is known only to enlightened ones, but these two are very well known, and these are documented also. GDV Compact and GDV Express cameras can take the photographs. So what is important is, when I am angry, my aura body becomes bad. When I am loving, caring, sharing, my aura body becomes good. And every person has a bioelectric magnetic field. Why we are getting happy with each other? Because we are sharing positive biomagnetic electrical energy fields. They are the charged materials. In your language, it is material. But not only material, it is powered material.
So it is different. That's all. One more important thing, they found out that the disease is first seen in the electrical or aura body, then it comes to the gross body. The cancer first can be detected by the defect in the aura body before it really comes to the gross body. There are so many researches. These are different SPECT scan pictures. Only to know that this Andrew Newberg, he is based in New Jersey, is a neurotheologist, and he found that only 12 minutes of spiritual practice, whatever you are believing into it, it's not you do this, you do that, something of your inner practice will not only reduce your stress but will retard your aging process. You will remain younger and healthier for a longer time. And these are the various specs before prayer, after prayer, before meditation, after meditation. So many scientists are working on this inner science. I would say this is not a philosophy, this is inner science. Now, one more interesting thing, this is new, what I talked from last year, how does the genetic pathways work? And so far, even I was believing that the genes cannot be changed, but the notion is wrong. This was the person, Bruce H. Lipton, you can Google and find a lot of work from him, he's a cell biologist. He came out that our beliefs do affect our cells and everything, and if you change your beliefs, you can change your life through the change of genes. So genes can be changed, genes expressions can be changed, and that is now a new branch, epigenetics. You can modify the expression of your genes. Now another good research I came across, see this is a chromosome and at the end are the structures known as telomeres. Dr. Mohit Gupta at the AI All India Institute of Medical Science, I have the one YouTube video, if you are interested I can share. I was really very happy to look because he himself is a cardiac surgeon. So he has shared two things of his life in that video. One is how he had a rare disease and medicines after trying everything, still it was persisting there. He healed by his chit energy, means putting his own energy over there. Being a cardiac surgeon, you cannot disqualify that this is something hypothetical or kalpana hai, aisa to nahi bol sakte usko. Second most important thing, they researched that nowadays why the 30-35-year people are getting heart attacks. What's the reason? People say it's corona, it is that, fine, it may be one of the factors. But their research said that, see, he narrates a story that a 35 years person was brought almost dead into his clinic. They could revive him, but then he went into death. What's the cause? And he found out that why his wife is not coming along with him when he's coming to clinic. So he went into the death. He requested his wife to accompany him for 3 months. On his request, his wife came and he found out that it was a matrimonial husband-wife stressful relations which was causing. So what they found is, even though the biological age is 35, the chromosomal age is 70-75. That means all these stresses can lead to degeneration of telomeres. So your inner chromosomal age may increase to 70, 75 or 80, even though you are looking outside. So all these, how they are important? Because it clears my understanding that what's affecting me in which way. So now the beneficial effects, this all you can find out with the scientific data, that how can I beneficially affect all these things. So it says lifestyle, stress-free, happy, harmonious, positive living. Yesterday only I met one lady, so she is pursuing the lifestyle medication course. She herself is a pediatrician, trying to reverse the disease. It has been proven that if you, by lifestyle, by nutrition, by other things, you can reverse your diseases, including diabetes or hypertension. So lifestyle has become important. Punctuality, biorhythm, exercise, yoga, meditation, you know. So the things you know, I am not going to dwell more. Rajdhani passes on to the stations which are known to you. But whatever is new, I'll dwell more. So they found out, surprisingly, that even telomeres or all these things, diet plays important role. So eating more or eating less, they found out, they documented that eating less is more healthier than eating more. I was surprised that how this correlates with our scriptural, with our ancient wisdom. My master Dada Bhagwan used to say me that Unodri, if you have the hunger of 4 chapati, eat 2.
keep stomach hungry, that if you call me again for dinner, I can take it. So no, taking food less than your normal hunger. So science now validates it. Eating less, autophagy. You may be knowing, you may have heard a Japanese scientist came out with a wonderful research that the hours you keep your system empty of food, it's a fasting, intermittent fasting, whatever you can say, your body cells in those time clears the toxins by its own. So for clearing the body of toxins, to keep it healthier, we should take recourse to partial or whatever we can do, fasting and intermittent fasting. Last time also I talked that intermittent fasting is a very big thing nowadays. There are lot many books, lot many YouTube videos, and I have personally seen my friends who are getting benefited by intermittent fasting. I myself is trying nowadays to do the 14 hours. So my evening meal and my next day morning, I try to keep, I'm not able to keep 16 hours, but I'm trying to keep at least 14 hours. So in those time, you will find that your body becomes more energetic, more lighter, your faculties become better. So talking about a stress, routine things we all know, but what is more novel things? Why the stress is there, and one of the reasons is incorrect understanding about everything. About my life science, about nature, about natural laws, about interpersonal relations. This holistic science throws light on everything. If I don't understand why he or she is behaving badly to me, why somebody is behaving nicely, why somebody is behaving, is it a random or it is by some natural rule? Then I cannot reconcile my own self. I can explain Bharti Ben, I can explain everybody, but I cannot explain my own self. Anything unresolved within me leads to stress. If I don't have the holistic science vision to reconcile my own self, understanding, ignorance of my science inside and outside, another important thing, the reason for stress in present times is disparity of mind, speech and body. What I think I cannot speak, what I speak I cannot do. What I think I speak differently, what I speak I do differently. That's another reason for stress. मोहनीय, मेरी चित्त वृत्ति इतनी सारी चीजों में पड़ी है, you can see this, and we are probably कहीं ना कहीं हम इसमें होते हैं. खाने के टाइम भी मोबाइल पे लगे हैं, टीवी पे लगे हैं, फ्री हुए तो व्हाट्सएप खोल दिया, फ्री हुए तो क्या नहीं खोल दिया. So my chit, rather than remaining within myself, always is playing with the toys outside. Essential है वो तो जरूरी है, but non essential है तो मेरी चित्त वृत्ति, चित्त शक्तियाँ जितनी बाहर जाती है, my neuronal and चित्त energy goes down, it goes drained, and that's going to lead to stresses. So it's very surprising that Einstein in his time said that I fear the day when the technology surpasses human interaction, there will be generation of idiots. Sorry, I cannot say, but it is his quote. So we have to be watchful, but the biggest reason is not knowing my true self. The biggest reason for stress to me is not knowing my true self. Solution is the correct understanding of the holistic science is the simple key. The master says there are only two things. Incorrect understanding leads to all the adverse results and stations. The correct understanding effortlessly leads to all the favorable or positive results, reaching to my pure self, apart from yoga, meditation or spiritual practices. Okay, a humorous question. What do you think? With whom or where the remote of your life is? Is it with you or is it lying somewhere else? Bharti Ben, anybody can answer. Where is the remote of my life? With us. Okay, it should be. Ideally, yes, it should be with you. But now if we introspect ourselves, if somebody tells two bad words, do I get upset? Yes. So is remote with me or with him or her? Yes. With two words, somebody can inflate me, somebody can deflate me. भारती बहन ने प्रमोशन नहीं दिया यार, मेरा पूरा 6 महीने का बोर्ड बिगड़ गया, तो रिमोट तो भारती बहन के पास चला गया यार. So just a humorous question, but a very meaningful thing. So holistic science teaches me to try to keep remote with me and not going somewhere else. So there is always a tug of war for the remote.
हमें कौन चलाता है? हु ड्राइव्स अस? others. खरे बोलते हैं रमा बहन हमें चलाती है, रमा बहन बोलते हैं हमें नहीं, बट समथिंग मोर देन दैट ऑन अ लाइटर मूवमेंट्स। रियली हमें कौन चलाता है? कोई बोलता है भगवान चलाता है, कोई बोलता है सर्कमस्टेंसेस चलाते हैं, कोई बोलता है फेट चलाता है, बट या प्लीज माइंड चलाता है। माइंड चलाता है। माइंड बोलता है मुझे कोई चलाता है, राइट, यू आर राइट, माइंड चलाता है हमें। वी आर गोइंग इन टू दैट डिरेक्शन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि हमें कौन चलाता है रियली। सो ये बॉडी तो बीइंग ड्रिवन है, बॉडी तो बेचारा चलता है, चलता फूलता फिर जाए, कमांड अंदर से आते हैं। तो बोलते पहला कमांड कहाँ से आता है? तो बोले अंतस्करण, अवर इनर सेल्फ। मन अकेला नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वो थोड़ा ड्वेल करेंगे बाद में, दिस विल बी अ न्यू एरिया फ्रॉम द लास्ट ईयर्स टॉक। मन बुद्धि चित्त अहंकार का पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें से ऑर्डर पास होता है, बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंगली। बट मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं हमें अकेले को क्यों ब्लेम करते हो? वी आर नॉट एलोन, वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस। जैसी आपकी बिलीफ्स, जैसे आपके ओपिनियंस, जैसे आपके अभिप्राय, ऐसा हम तो काम करते हैं। क्या करते हैं? एज ए डॉक्टर, इफ आई वांट टू मेक क्विक मनी, मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा काम करेंगे। एज ए डॉक्टर, इफ आई वांट टू बी ऑनेस्ट टू माय पेशेंट्स, मेरी मान्यता ऐसी, मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा काम करेंगे। सो योर बिलीफ्स, सो योर ओपिनियंस, सो दे वर्क। ओके, मान्यता और अभिप्राय, बिलीफ्स एंड ओपिनियंस बोलते हम भी अकेले नहीं है। वी आर बीइंग ड्रिवन बाय योर इंटेंट्स एंड मोटिव्स। हम लोग, इतने लोग यहाँ आए हैं, डू यू थिंक एवरीबडीज इंटेंट एंड मोटिव विल बी सेम? नियर बाय है, मे नॉट बी सेम। कोई बोलता है साल में इतने फंक्शन तो करना जरूरी है, थोड़े फोटो निकलवाना चाहिए, सो लेट्स हैव द गैदरिंग। कोई बोलता है कुछ जानना जरूरी है। सो इंटेंट्स एंड मोटिव्स, इंटेंट्स एंड मोटिव बोलते हैं वी आर बीइंग ड्रिवन बाय गोल्स। आपने जो पर्पस या गोल नक्की किया है, हाउ मेनी ऑफ अस हैव डिसाइडेड द गोल्स और पर्पस ऑफ आवर लाइफ? कैन आंसर योरसेल्फ? या यस। और वो बोलते हैं हम भी अकेले नहीं है, वी हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ योर इनर वीकनेसेस। आपको मान चाहिए, आपको लोभ चाहिए, क्रोध मान माया लोभ का इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो दिस इज होल इनर मशीनरी। अकेला मन नहीं काम कर रहा है। सो दिस इज जस्ट सिंपल ग्राफिक्स दैट वॉट एवर वी परसीव थ्रू फाइव सेंसेस, दैट्स आवर कनेक्टिंग मीडिया टू आउटर वर्ल्ड, and this is our inner processing world with what I taught, mind, intellect, reflective consciousness, ego. But in between there is a one lens, एक चश्मे का कांच है जिसको हम बिलीफ, मान्यता और अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। इफ वी चेंज अवर बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग विल चेंज। नथिंग एल्स कैन बी चेंज एक्सेप्ट अवर बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग। आंख के डॉक्टर के पास जाओगे वो चश्मा चेंज करेगा, नहीं तो कैटरेक्ट निकालेगा। बाकी का कुछ मैं वर्ल्ड नहीं चेंज कर सकता हूँ, बट आई कैन चेंज योर विजन थ्रू आइदर स्पेक्टिकल्स और रिमूविंग द कैटरेक्ट। व्हाट हैपेंड? सॉरी, या मटेरियल मैनेजमेंट नहीं आता है ऐसा होता है। सो इट वेंट ऑन टू डिफरेंट मोड. So again, last time if Bharti Ben can recollect, we had talked about happiness shop. So this is just a quick recap. So for my happiness, now we are coming to the mind and soul part. What should I do? So routinely we are in competition and comparison कि अभी तो मैं यार आल्टो चला रहा हूँ और ये साहब तो BMW Mercedes चला रहे हैं. So when can I get it? अभी तो मेरे पास 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, EMI भी खत्म नहीं हुआ है, बट एक खरे साहब ने तो बहुत बड़े बिल्डिंग बना के रखा है. सो आई एम रन, बट दैट डजंट गिव मी. सो द हैप्पीनेस विच गिव्स मी गुड इफेक्ट एट द हार्ट. सो ओपन हैप्पीनेस शॉप और योग उपयोग परोपकार सब ने बोला, बट माई सीक्रेट एक्सपीरियंस आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू इज कि दूसरों को हैप्पीनेस देने से पहले नक्की करता हूँ तब मुझे पहले हैप्पीनेस मिलती है. किसी को अभी तो मैंने हेल्प नहीं की है, अभी तो नक्की किया कि ये पेशेंट के थोड़े पैसे कम लूँगा, कोई बात नहीं. आज ही ऐसा हुआ कि द फेलो जस्ट आई ऑपरेटेड इन द आफ्टरनून एंड आई हैड सेड एक्स अमाउंट. फिर उसकी जिनको ऑपरेट किया था तो ओल्ड लेडी सेड कि आज ही उसकी वाइफ बाथरूम में गिर गई, फ्रैक्चर आ गया है, उसकी आमदनी लिमिटेड है. सो आई डिसाइडेड ओके लेट मी कम डाउन, जो भी मैं कम कर सकता हूँ कम करूँगा. अभी बिफोर आई एक्सप्रेस मुझे पहले हैप्पीनेस होती है,
तो ये जो सीक्रेट है किसी ने नहीं बताया था कि विच एवर एक्शंस ऑफ योर माइंड, स्पीच एंड बॉडी विच आर गोइंग टू हेल्प अदर्स डू हेल्प यू फर्स्ट, डू मेक यू हैप्पी पर्सन। अभी मुझे हेल्प कैसे मिलती है? तो बोलते हैं मेरे पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मेरी ऑरा बॉडी पॉजिटिव होती है, मेरे फंक्शनल एमआरआई पॉजिटिव होते हैं, एंड आई because my atoms and molecules are positive, it draws positive and good and higher people like you to me. Or this is also natural science. How do we meet the good people? How do we meet the people with a higher purpose? It's through our atoms and molecules which become positive. So this is there. Another important thing, लोग बोलते हैं कर्म, भारतीय में बोलते हैं पास्ट जन्मों के कर्म और पुनर्जन्म और भविष्य का। आज की यंग जनरेशन बोलती है who is seen that? We don't believe into that. अभी क्या है वो बताओ। So I experience that this my action मैं नक्की करता हूँ माइंड के लेवल पे है, स्पीच के लेवल पे है कि बॉडी के लेवल पे है या तो भाव के लेवल पे है। पहले राइट हियर एंड नाउ मुझे फल देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आई एम नॉट कंसर्न विद पास्ट मच, आई एम नॉट कंसर्न विद फ्यूचर, आई एम कंसर्न विद द प्रेजेंट, बट आई कैन एक्सपीरियंस दैट ईच। अच्छा, खरे साहब ने मुझे अच्छे ढंग से नहीं बुलाया, मैं नक्की करता हूँ अगली बार तो जाऊंगा ही नहीं, मैं लास्ट मोमेंट पर ही रखड़ा दूंगा। तो खरे साहब तो रमा जी के यहाँ साथ मजाक कर रहे हैं, बट दैट नेगेटिव विल बग मी, मेरी सैलरी अच्छी नहीं आएगी, मेरी सब नेगेटिव हो जाएगा। सो भाव से लेके पॉजिटिव या नेगेटिव पहले राइट हियर एंड नाउ मुझे इफेक्ट कर रहा है। वर्ल्ड इज मी ओनली। तो एक बार मुझे पूछा गया कि साहब फिलोसॉफिकली तो हम सब एक हैं, आप हम सब कल्पना कर सकते कि आत्मा सबका एक है, व्यवहार में कैसे एक हो सकते हैं हम? क्योंकि आप दोगे तो मैं लूंगा, पेशेंट फी नहीं दूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। सो व्यवहार सीम्स डिफरेंट। सो इट अकर्ड टू मी कि मेरे मन वाणी का से किसी को सुख देना है तो मुझे पहले मिलता है, मुझे किसी को दुख देना है तो मुझे भी होता है। सो राइट नाउ वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, यू कैन एक्सपांड ऑन टू दिस। सो वर्ल्ड इज मी ओनली, कि मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरा ही प्रतिघोष है, मैं ही हूँ। तो महावीर ने वही बोला था कि भाई तू जिसे प्रेम करता है वो भी तू है, जिसके साथ दुश्मनी करता है वो भी तू है, जिसको दुख देता है वो भी तू है, तो अभी क्या करेगा? सो वंस दिस विजन चेंजेस योर होल पर्सपेक्टिव चेंजेस। सो कैसे आया? तो आप सब लोग सब कुछ सिखाते हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट सिखाते हैं, MBA की कॉलेज है सब, बट ऑल ऑफ देम टीच टू मैनेज समथिंग एल्स। अंदर देखना कौन सिखाता है मुझे? जब से मुझे अंदर देखने का आया कि भाई हर चीज मेरे मन वाणी का पर क्या असर कर रही है, मेरा पूरा जीवन पलट गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये यही सिखाता है, सब कुछ करो, साथ साथ में अंदर देखने का सीख जाओ कि अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर देखने की कला या आंतरिक जागृति आ गई तो कुछ पुस्तक नहीं पढ़ोगे, कुछ गुरु नहीं मिलेगा तो भी आपको सब मिल जाएगा ब्रह्मांड का। और रियल हैप्पीनेस, सनातन सुख, ये जो ऊपर वाली बात की मैंने, हैप्पीनेस 2 टाइप्स की है। एक हैप्पीनेस है जो रिलेटिव हैप्पीनेस है, दोनों करेक्ट है। अभी ऊपर नाश्ता किया वो रिलेटिव हैप्पीनेस है, कोई अच्छे ढंग से बोलता है रिलेटिव है, पर जरूरी है, उसको निगेट नहीं कर सकते, इट इज़ अ रिलेटिव ट्रूथ। पर रिलेटिव हैप्पीनेस और रियल हैप्पीनेस में फ़र्क क्या है? तो बोले रिलेटिव हैप्पीनेस संयोगों के ऊपर अधीन है। क्या है? जब तक संयोग फेवरेबल है वी फील हैप्पी, हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग होते हैं वी फील अनहैप्पी। अभी मैं बोल रहा हूँ ये उड़ जाएगा, लाइट उड़ जाएगी, आई मे फील अनहैप्पी। तो चलो वो भी हमने स्वीकार कर लिया। अच्छा, सब संयोग हमारी धारणा से अच्छे हैं, चाहिए उससे अच्छी सैलरी है, चाहिए उससे अच्छा रिस्पेक्ट या मान मिल रहा है, चाहिए उससे अच्छे हमारे सब रिलेशंस है, फिर अंदर देखिए कि सब कुछ तृप्ति हो गई कि समथिंग मोर एंड मिसिंग। अरे खरे साहब 7 स्टार होटल में दुबई में ले जाते हैं ना, तो अभी कितने दिन मजा आता है? 2-3 दिन, फिर कंटाल आता है। तो बोले रिलेटिव हैप्पीनेस का स्वभाव ये है कि थोड़ा समय आनंद आता है, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, वो भी एक्सेप्ट, मगर उसमें तृप्ति नहीं होती, आकुलता व्याकुलता मिटती नहीं। इसीलिए एनलाइटन वंस बोलते हैं तो देन एट द अदर एंड ऑफ द शोर देयर शुड बी समथिंग विच इज रियल हैप्पीनेस। सनातन सुख होना चाहिए जो संयोगों से स्वतंत्र हो, कोरोना में आइसोलेशन में भी आप हैप्पी रह सके, ऐसा कुछ होना चाहिए, और तृप्ति दे, आकुलता व्याकुलता के बदले निराकुलता दे और निर्भयता दे, ऐसा होना चाहिए। और वो कैसे मिल सकता है?
तो बोले आत्मा, नो योर ट्रू सेल्फ, हु यू आर, व्हाट इज योर ट्रू सेल्फ, व्हाट इज इट्स एग्जिस्टेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। आप तो मटेरियल वाला आदमी है, सबकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, सब मटेरियल की। ऐसे ये ह्यूमन फॉर्म है, वो मटेरियल और कॉन्शियस दोनों का मिक्सचर है, अकेला मटेरियल नहीं है। और अकेला मटेरियल वर्ल्ड में कुछ कर भी नहीं सकता है, आपको भी पावर देना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल देना पड़ता है, मैग्नेटिक देना पड़ता है, एटॉमिक देना पड़ता है, तभी जाके मटेरियल कुछ काम करता है। इधर नेचुरल की सिस्टम ने कॉन्शियस का पावर दिया है मटेरियल को, क्या दिया है? सो इट्स नॉट ओनली अ मटेरियल साइंस बट मटेरियल अलोंग विद अ कॉन्शियस, दोनों का है। तो once I know my true self, its existential state of being, its properties and its function, तो वो सनातन सुख चालू हो सकता है। I can vouch that even in present day it can. So आज मैं अनकन्वेंशनल पाथ पर जा रहा हूँ कि भाई हायर से ये जब सनातन सुख की बात करता हूँ तो सनातन सुख का रास्ता भी पहले बात कर लेता हूँ। यूजुअली आई यूज्ड टू डिस्कस दैट इन द एंड पार्ट। तो आज मुझे लगा कि भाई अच्छा ह्यूमरसली बोलूं, आप मेरे पास आए और मैं बोलूं अलग अलग तरीके के चश्मे हैं, मतलब एक चश्मा ऐसा है कि सब जगह पे दिखाई देगा, कोई भी कंडीशन में दिखाई देगा, अंधेरे भी दिखाई देगा, अंधेरा ही नहीं रहेगा। तो आप क्या बोले डॉक्टर साहब, बाकी की बात छोड़ो, वही दे दो, जो भी कॉस्ट होगा। ज्ञानी पुरुष वही बोलते हैं कि ये दृष्टि मिलने के बाद अंधेरा ही नहीं रहेगा, कुछ अंधेरा इनर या बाहर। तो उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस बोला, द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, देयर आर टू व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व दिस पजल, वन रिलेटिव द अदर रियल। तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत डेवलप्ड हैं, यू हैव डन वेरी वेल इन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड आई एम श्योर कि योर इनर जर्नी इज आल्सो एट अ गुड लेवल। सो व्हाई नॉट टू टॉक टू टच अपॉन दिस स्टेशन फर्स्ट। सो हाउ कैन आई नो माई ट्रू सेल्फ? थोड़ा हंसते हंसते बात करते हैं। आई एंड माई तो सबके पास है कि नहीं है, और आई और माई का स्टडी पूरा हो जाए ना तो नोबेल प्राइज मिलेगा। जाओ तो बोले मैं क्या बोलता हूँ, माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई मनी, माई फोन, माई 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 फाइन। अच्छा मैं माई माइंड बोलता हूँ कि आई एम माइंड बोलता हूँ, माई कर्मास बोलता हूँ कि आई एम कर्मास बोलता हूँ, माई फीलिंग्स बोलता हूँ कि आई एम फीलिंग्स बोलता हूँ। सब लोग मेरे रिलेटिव है, ये मेरे रिलेशन में है, ऐसे बोलते हैं। कोई रियल बोलता है? कभी सोचा कि रियल क्यों नहीं बोलते, रिलेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिलेटिव रिलेशंस है सबके साथ। क्या है तो बोलते हैं सेपरेट आई एंड माई, सब माई वाला बाजू पर मुको, माई नेम, माई फीलिंग्स, माई कर्मा, माई बॉडी, माई हस्बैंड, माई वाइफ, सब। और दूसरी बाजू क्या बचेगा तो बोले आई। अच्छा माई और आई के कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो बोले जो माई वाला पार्ट है उसको बिगिनिंग और एंड है क्या? माई वाले पार्ट को कुछ भी ले लो, नहीं है, नहीं है। एक चीज बताओ जो माई में है और जिसको बिगिनिंग और एंड नहीं है, एक ही चीज बताओ। ये बॉडी बिगिनिंग एंड एंड है कि नहीं? तो बॉडी से तो बाकी के सब छोटे हैं। क्या है? बॉडी से तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी शॉर्ट है, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन शॉर्ट है, जॉब का रिलेशन भी शॉर्ट है। तो माई वाला पोर्शन है वो शुरुआत और अंत वाला है, चेंजिंग है, फाइनाइट ड्यूरेशन वाला है। तो उसको जानने वाला इनफाइनाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी वो जान सकता है कि माई वाला चेंजिंग है, फाइनाइट है। अच्छा अनदर थिंग, कई बार ये खरे साहब के यहाँ पहुँच गया, मैं भोपाल ले गए थे, फिर पूछा डॉक्टर साहब रात को नींद आ गई? अरे बहुत अच्छी तरह से नींद आ गई। और वो पूछने लगे कि आप सो गए तो जाना किसने कि अच्छी नींद आई थी? सो देयर इज वन पार्ट हु इज एक्सपीरियंसिंग, अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, मैंने किया। करने वाला और जानने वाला एक होते हैं कि अलग होते हैं? ऑलवेज दे हैज टू बी सेपरेट, बट नोबडी टोल्ड मी टिल नाउ डूअर एंड नोवर हैज टू बी सेपरेट। सो आइंस्टाइन ने भी बोला था, नाउ आई वांट टू नो द ऑब्जर्वर थ्रू व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग। ज्ञानी बोलते हैं जानने वाले को जानिए और आप सब कुछ जान लेंगे। ब्रह्मांड में जो भी कुछ जानने योग्य है, नो द नोवर एंड यू विल नो एवरीथिंग वर्थवाइल। सो ignorance about who am I really and ignorance about who is the doer, how the things are being done, ये जो दो चीजें, उससे सब पजल्स, सब इल हेल्थ जो भी बोलो, तो उसके सामने जो है खुद से ही अनजान है, वो उसको क्या बोलेंगे हम? छोटी मिस्टेक या बड़ी मिस्टेक है? सब कुछ मैं सर स्क्रैच कर रहा था कि सर कोई टेक्स्ट बुक में नहीं आया आज तक।
तो बोले आत्मदृष्टि, जो शब्द भले बड़े हो छोटे हो, द सिंपल थिंग इज इफ आई कैन नो माई कोर ऑफ बीइंग तो एवरीथिंग विल बिकम गुड. तो शेयरिंग वेरी ब्रीफली माई ओन जर्नी बिफोर आई गो इन टू द अदर एस्पेक्ट्स. I got introduced into this science 1977 when I was 18 years and I was a medical student. I had completed my first MBBS and their second MBBS was about to start and there was a vacation of 2 weeks. So I thought, okay, let's look something else in the world, and nature took me here. And throughout this 44 or 45 years, 77 to 24, it's almost 46 years completed, these 5 simple sentences. रिलेटिव व्यू पॉइंट, व्यवहार दृष्टि से मैं सर्जन हूँ, व्यवहार दृष्टि से आपके साथ बात कर रहा हूँ, इट इज अ रिलेटिव. द रियल डोंट हैव द लैंग्वेज, रिलेटिव प्रकृति हैज द लैंग्वेज. सो इट इज अ रिलेटिव प्रकृति विच इज टॉकिंग टू यू, रियल इज नोइंग व्हाट इज बीइंग टॉक्ड टू यू. चल कैसे रहा है, यू आर द पीपल ऑफ साइंस. सो इट्स अ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, शॉर्ट उसका एक्सप्लेन कर लेना है. Doer is scientific circumstantial evidences. How I have to deal with everything, including my own prakriti and including my account and accountabilities or liabilities. तो बोले संभाव से ऋणानुबंधी संबंधों और संयोगों का निपटारा करिए. और 5वां है, अब तक तो मैं शैलेश की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस देखता रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा अंदर मेरी और खुद की भी देखता रहता हूँ कि मेरी खुद की क्रेडिट कितनी है. क्योंकि शैलेश की क्रेडिट तो या तो कोई ले जाएगा, भाई बात मांगेगा, या तो नना में निकलेगी तो बिल करके चला जाऊंगा, किया कि नहीं किया, वो भी जरूरी है. बट व्हाट कम्स विथ मी इज दिस. सो मुझे ये अनुभव हो रहा है 45-46 साल से कि भारतीय बहन, पहले लोग ऐसा बोलते थे कि संन्यास्ताश्रम में सब कुछ खत्म होने के बाद ये बाजू जाना, नहीं तो व्यवहार रखड़ पड़ेगा, संसार छूट जाएगा. नहीं, दैट इज इनकरेक्ट. इन फैक्ट बोथ गोज पैरेलल. Both goes parallel, each helps each other. वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, it has helped me in both all walks of my life, even if it is professional, personal, social, wherever I go. So जैसे पंखी 2 पाख से उड़ता है और ट्रेन 2 पटरी पर चल रही है, if I have both the things relative and real, मैं प्रकृति को भी जानता हूँ, शुद्ध को भी जानता हूँ, जो कृष्ण भगवान ने 15वें अध्याय में बोला, प्रकृति और परमात्मा की बात की. And another thing, I know this is the deep depth, but I'll come to a lighter plane very soon. ये विश्व में सिर्फ 2 ही चीज है, एक मैं खुद हूँ, आप जो लेवल पर समझते हैं, दूसरे संजोग है, व्यक्ति है और संजोग है. व्यक्ति या संजोग, पसंद नापसंद, अनुकूल प्रतिकूल, सब पासिंग फेजेस है, वियोगी स्वभाव वाले. पसंदगी वाले भी चले जाएंगे, we will also disperse. नापसंदगी वाले भी चले जाएंगे. So don't fight and don't lose your energy to fight or meddle with the circumstances. Be away, enjoy, deal with the circumstances in the best possible way. पर 2 ही चीजें, शुद्धात्मा और संजोग. संजोग सब वियोगी है. ज्ञानी ये इक्वेशन अच्छे ढंग से जानते हैं कि मुझे संजोग से कैसे डील करना है. सो नाउ कमिंग टू द लाइटर प्लेन. सो हैविंग सेड दैट, इफ आई कम टू माय डेली लिविंग, लास्ट टाइम मैंने क्लैशेस की बात की थी, अभी मुझे बड़ी बात नहीं करनी है, बट छोटी सूक्ष्म. चलो, हम सबको सूक्ष्म क्लेश होते हैं कि नहीं होते. बाहर तो हम अवॉइड कर लेते हैं बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड. वी कांट टेल ऑन फेस टू एनीबडी कि भाई आप ऐसे, आप मेरे मानते नहीं. बट अंदर होता है कि नहीं होता है? मुझे तो होता है कि भाई यार इतना समझाया तो भी ये समझता ऐसा ही करता है, इतना उसको कहे तो वॉट एवर इज बगिंग मी, जो मुझे समाधान नहीं, असमाधान दे रहा है, व्यक्ति है या संजोग है, यदि मेरे पास कुछ समझ नहीं है तो आंतरिक क्लेश खड़ा होगा. और चित्त में क्लेश न हो, उसी का नाम साइंस है, उसी का नाम धर्म है. वेद और उपनिषद ने भी फर्स्ट दे रखा है कि निष्क्लेश चित्त, उसको समाधि भी बोलते हैं. आंख बंद करके नहीं, खुली आंख से डेली लिविंग में. सो 2 चीज है कि व्यक्तियों के साथ जब होता है तब मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मेरा व्यू पॉइंट है ऐसे सबके व्यू पॉइंट है. एवरीबडी इज करेक्ट बाय हिज और हर ओन व्यू पॉइंट. ह्यूमैनिटी इज वन विच रिस्पेक्ट्स द अदर्स व्यू पॉइंट्स. और दूसरा, मेरे जो सूक्ष्म आंतरिक क्लेश है, ये वितराग विज्ञान और होलिस्टिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग मुझे काम में आती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. सो ये बात हुई. एडजस्ट एवरीवेयर की बात की. खरे साहब मुझे बोलता है और कुछ नहीं चाहिए, एक ही मास्टर की मिल गई, एडजस्ट एवरीवेयर, तो मैं पूरी दुनिया ही भी जीत लूंगा और मुक्ति तक चला जाऊंगा. वो उनका एक्सपीरियंस सही है. सो प्रकृति तो भिन्न भिन्न है. लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि भाई प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, मगर भारती बहन क्यों सक्सेसफुल हेड है या HOD या टीम लीडर कौन होता है? तो बोले
भिन्न भिन्न पुष्पों का जो बुके बना सकता है अच्छे ढंग से। म्यूजिशियन में सब अलग अलग, तो म्यूजिशियन में कोई तबले में अच्छा है, कोई हारमोनियम में अच्छा है, बट अ मास्टर इज वन हु कैन तालमेल मिला के म्यूजिक अच्छा करता है। ऐसा नहीं बोलता है तबले वाले को आपको हारमोनियम क्यों नहीं आती है, हारमोनियम वाले को ऐसा नहीं बोलता है तुझे तबला क्यों नहीं आता है, बट मेक्स अ गुड टीम वर्क। सो ये बगीचे से जब हम सीखें कि हर एक अलग अलग है, बट हर एक के पास अपना अपना फल फूल है, मीन्स नेचर हैज गिवन ऑल डिफरेंट ह्यूमन बींग्स डिफरेंट एबिलिटीज एंड डिफरेंट वर्च्यूज। अनदर शैलेश में आईने के सिवा और कहीं नहीं पा सकता हूँ। कोई बोलता है कि 5 सिमिलर होते, मैंने नहीं, मुझे मालूम नहीं, बट आई कैन फाइंड अनदर शैलेश ओनली इन द मिरर, ऑल आर गोइंग टू बी डिफरेंट। So if I have this vision के let's find out what one has positive and make best use of it, adjustment करना नहीं पड़ेगा, अच्छे ढंग से हो जाएगा। अच्छा, कभी शुगर दूध को पूछती है कि कहाँ से आया, अमूल डेयरी का है कि मेहसाणा डेयरी का है, कितने फैट का है, तो बोले नहीं, शुगर जाके उसमें मिक्स हो जाती है, उसको स्वीट कर देती है। सो आई टेल माई सेल्फ कि जहाँ भी आप जाओ बुद्धि को बाजू रख के दूध में शुगर का काम करो, और पहले मुझे मिठास मिलेगी, बाद में औरों को मिलेगी। सो अनुकूलन आंतरिक है, जहां मन में भी शिकायत नहीं उठती है। अच्छा, हमारा सबका घर तो स्वर्ग है ना, आपका सबका तो दिखाई दे रहा है मेरा, पर मेरे लिए मेरा घर 50-50 है। कहीं पर मेरी टेस्ट भी लेता है, लेबोरेटरी एग्जाम लेबोरेटरी टेस्ट भी है, और कहीं पर तो बोले घर जीतना है, जगत जीतने की जरूरत नहीं है। जो घर में एक दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा है, वो छोटा होगा तो भी बहुत बढ़िया है, और बहुत बड़ा होगा मगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ओके, अच्छा, पति पत्नी, तो आप सब लोग तो यू आर, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड कॉम्प्लीमेंट यू हैविंग लिव्ड नाइसली, बट ये हमारे जैसे लोगों के लिए है कि पति पत्नी साथ में आते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, मगर दो आइडेंटिटी अलग रहती है कि एक हो जाती है, अलग रहती है। एज लॉन्ग एज वन आई इज लविंग, केयरिंग, शेयरिंग एंड फ्रेंडली विद अदर आई, इट इज अ विन विन सिचुएशन। बट जब एक आई दूसरे को जीतने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है बंद दरवाजे के अंदर नाटक शुरू होता है। तो यहाँ एक समझ मुझे हेल्प करती है। एक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर थे, भले पढ़े लिखे नहीं थे मगर समझ बहुत अच्छी थी, तो वो बीवी को झूला हिला रहे थे। तो किसी ने पूछा कि भाई यार, आप बीबी को झूला हिला रहे हो, तो ताज्जुब की कोई हिंदू के घर तो समय देखने, तो बोले बीबी आपके सर नहीं बैठेगी। बोले वो कैसे सर बैठेगी, उसको मुझ थोड़ी आएगी, वो तो बायोलॉजिकल जो है, मगर मेरी आमदनी छोटी है, बीबी नाराज हो जाती है, उसको मैं राजी नहीं करूँ तो मेरी रात बिगड़ती है, वो ऐसे सो जाती है, मैं ऐसे सो जाता हूँ, मैं कुछ भी करके उसको राजी कर देता हूँ। क्या बोलते हैं? तो बोले ही और शी इज मी ओनली। How she is me only? Husband doesn't behave nicely for her sake, he is nicer to oneself. इसी तरह उसके धर्मपत्नी है। पति या पत्नी तो बाद में है, पहले खुद से हम अच्छे या बुरे होते हैं, तब जाके बाद में दूसरों से अच्छे या बुरे होते हैं। ही और शी इज मी ओनली, ये छोटा सा रहस्य आ जाए तो विश्व के साथ आप एनलाइटेंड, आपका बिहेवियर हो जाएगा और आप अंदर से सुख से भरे रहोगे। अच्छा, प्रेम की तो बहुत बात कर रहे हैं हम, तो एक दो ही चीज शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे सबके पास प्रेम है ना, है कि नहीं? लेडीज फर्स्ट, माता का प्रेम तो है, इट इज विदाउट एनीथिंग, नो सेकंड थॉट, बट बाकी के सब प्रेम है हाँ और ना, पार्शियल यस पार्शियली नो। क्यों? क्योंकि वो कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है, स्टॉक्स मार्केट के जैसा अप डाउन होता रहता है। क्या है, हस्बैंड अपनी बात सुनता है तो प्रेम आ जाता है, हस्बैंड अपनी बात नहीं मानता है तो प्रेम थोड़ा कम भी हो जाता है। तो बोले नहीं, प्रेम उसका नाम है जहाँ अपेक्षा और शर्तों से पार जाता है वो, और उससे ज्यादा सीक्रेट। मैंने एक चीज सोची कि भाई मैं हूँ, मैं आपसे फ्रेंडली बिहेव या रहने की ट्राई करूँ, बट आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रेसिप्रोकेट नहीं करते, मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते, मेरे फ़ोन का जवाब नहीं देते, तो मैं नक्की कर लेता हूँ भाई मेरे पास भी कहाँ फिजूल का टाइम है, आप आपके रास्ते पर, मैं मेरे रास्ते पर, दोनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दैट इज़ अ ह्यूमन लिमिटेशन, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की ये लिमिटेशन है। फिर मुझे समझ में आया कि ये लोग पागल हैं कि वाइज है, एनलाइटेंड वंस। फिर मुझे अनुभव में आया कि आप मेरे पर प्रेम रखे कि न रखे वो आपका मामला है,
यदि मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम है तो मेरा हृदय हमेशा भरा रहेगा, उसका बेनिफिट मुझे होगा, आई विल नेवर फील लोनली। तो ये दृष्टि से आज पूरे विश्व के साथ प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। दिस इज हाउ द एनलाइटन वंस जीव माता के साथ प्रेम से रहते हैं। क्या रहते हैं? लिटिल चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, सेल्फ, अब तो मटेरियल मैनेजमेंट तो सिखाते हैं, कोई दूसरा ह्यूमन मैनेजमेंट भी सिखाता है, बट कोई सेल्फ मटेरियल को मैनेज करना चाहिए, कोई किस उन्होंने बोला ह्यूमंस को करना चाहिए। अभी मैं ये और बात पूछ रहा हूँ, ये दूसरे ह्यूमंस को मैनेज करना चाहिए? हाँ, ड्यूटी है तो करना चाहिए, बट मैं कब कर सकूंगा? अनलेस आई नो हाउ टू मैनेज माई सेल्फ आई कैन नॉट मैनेज अदर्स वेल। आपकी बात से मैं एक्साइट हो जाता हूँ, आपकी बात पर मैं रूठ जाता हूँ, आपसे मेरा कंफ्लिक्ट हो जाता है, उस समय में मेरे को मैनेज नहीं कर सकता हूँ। हाउ कैन आई मैनेज योर सेल्फ? सो वन हु कैन मैनेज सेल्फ, वो कुछ नहीं करेगा तो भी उसकी हाजिरी से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। दैट इज वेयर द एनलाइटन वंस आर। दूसरों को इंप्रूव करना चाहिए। पूरी जिंदगी हस्बैंड वाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, वाइफ हस्बैंड को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चों को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एट द फैग एंड ऑफ द डे हम बोलते हैं यार कोई सुधरता नहीं है। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं दूसरों को सुधारने का प्रयत्न फिजूल है। इंप्रूव योर सेल्फ, इफ यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ अदर्स विल बी ऑटोमेटिकली इंप्रूव एंड अल्टीमेटली नो थाई सेल्फ। सो सेल्फ के आसपास भी काफी कुछ है। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट, आज तो बैंक इंटरेस्ट तो वो काफी अच्छे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट कितने लोग हमारे में सच्चे ढंग से जानते हैं? हाथ ऊंचा कर सकते हैं? गुड। और आई थिंक ऑल आर नोइंग सेल्फ इंटरेस्ट विल। सब अपना ही तो जानेंगे कि नहीं जानेंगे? अच्छा, लेट अस पुट इट टू टेस्ट। खरे साहब बोलते हैं हम तो सब केमिकल का टेस्ट करते हैं, सो लेट्स पुट इट टू ह्यूमन टेस्ट। अच्छा, डिसऑनेस्ट इज द बेस्ट फुलिशनेस। तो कहीं ना कहीं मैं डिसऑनेस्ट होता हूँ। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी तो गांधी जी के साथ चलेगी। कहीं ना कहीं मैं पेशेंट के साथ, अच्छा हस्बैंड वाइफ के साथ कभी डिसऑनेस्ट होता है, कभी वाइफ हस्बैंड के साथ होती है, क्योंकि हस्बैंड डांटेगा तो वाइफ बोले कि जाने दो ना, अभी कच कच करेंगी, बोलने का जरूर नहीं। हस्बैंड भी कुछ ऐसा करता है जो वाइफ को नहीं बोलता। यहाँ बोलते हैं डिसऑनेस्ट इज द बेस्ट पुलिसनेस। कैसे? तो बोलते हैं जैसे ही मैं डिसऑनेस्ट होने का सोचता हूँ मेरे अंदर भय उत्पन्न होता है, आंतरिक क्लेश शुरू होता है मेरे ही अंदर, इनर कन्फ्लिक्ट्स। लाई डिटेक्टर मशीन को पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर गोज अप, रेस्पिरेशन गोज अप। एक बार मेरी ऑफिस में एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, कार्ड मुझे अंदर भेजा, थोड़ा समय है मेरे पास, तो मेरे को पसीना आ गया ऐसी चेंबर में। बोला यार क्या रेड वेड लेने के, क्योंकि कुछ उसको इन्फॉर्मेशन मिली। फिर वो अंदर आया, मैं इनकम टैक्स आया हूँ, पहले तो रॉब झड़ेगा नहीं, आइए आइए सर बैठिए बैठिए, मुझे आँख दिखा दिया। सो वो मेरा बॉस नहीं था, मेरी गलती। यदि मैं डिसऑनेस्ट नहीं होता तो भगवान आता तो भी मुझे कोई भय नहीं लगता। बिफोर डिसीविंग अदर्स आई एम डिसीविंग माई सेल्फ। अच्छा, अपने हित अहित की जब बात करते हैं, हम 4 लोग पान के गल्ले पर चाय में रिसेस में इकट्ठे होते हैं और जेब में टेप रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड करते हैं तो क्या सुनने को मिलेगा? कहीं ना कहीं हम 2-4 की क्रिटिसिज्म तो कर ही लेते हैं, मोदी ने ऐसा किया, ये मेरा बॉस तो मानता है मगर ये कली। तो उसमें मेरा आनंद बढ़ता है कि किसी के गुण देख के उसको अप्रिशिएट करने में मेरा आनंद बढ़ता है। कितना समय मेरा लोगों के वर्च्यूज देख के अप्रिशिएशन में जाता है और कितना समय मेरा क्रिटिसिज्म में जाता है। अभी मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं कि मुझे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट मालूम है, हाँ या नहीं? लव और हेट्रेड अभी तो आप सब लोग जान गए, अभी पेपर ओपन है। रिवेंज और फॉरगिवनेस कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चिपक रहता है ना, कि उससे तो बरोबर अभी सबक सिखाना है। तो उसके पहले मुझे आई एम इन्वाइटिंग हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी और व्हाट नॉट। तो मेरे खुद के इंटरेस्ट, अच्छा गेट इरिटेटेड और रिमेन कूल विद अनोइंग पीपल, जिसे हम नॉनसेंस बोलते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, एमडी फिजिशियन था, पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, वेरी ऑनेस्ट बट स्ट्रिक्ट। कोई उसकी मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं करता, टाइम पर नहीं आता, सर मुझे ठीक नहीं लगता, ओके डोंट कम टू मी नेक्स्ट टाइम, बहुत एग्रेसिव हो जाता था। अभी एकदम कूल हो गया। मैं बोला क्या हुआ? तो बोले मुझे समझ में आया कि मेरा ब्लड प्रेशर मेरी हेल्थ में क्यों खराब कर रहा हूँ। सो जस्ट थिंक। अच्छा, पॉजिटिविटी की बात तो लास्ट ईयर भी की थी, मैं छोड़ देता हूँ। बट क्रिटिकल सिचुएशंस हमारी सबकी लाइफ में आती है। वी नीड सम अंडरस्टैंडिंग through which we can pass through all the situations, keeping our inner self stable
तभी मैं जाके दूसरों को भी हेल्प कर पाऊंगा, मुझे खुद को भी हेल्प करूँ. दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ 4th stage कैंसर पर्सन इन द टाटा हॉस्पिटल. His son, both are having the vision understanding. He is trying to remind him. और वो भी खुश में, कोई बात नहीं, बॉडी को कर रहे, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, कोई बात नहीं, जाएगा तो जाएगा. सो आई हैव सीन लॉट मेनी पीपल. सो 5-7 minutes मोर, बट डिस्कवर द वर्ल्ड विद इन. ये नया टॉपिक है कि सब कुछ जानते हैं, मगर क्या मैं मेरा इनर वर्ल्ड जानता हूँ? जो मैंने शुरुआत की थी, जो इन्होंने बोला मन की बात, तो ये तो बात मैंने कर ली है कि भाई अंदर क्या क्या चल रहा है. मगर मन, तो मन का साइंस कितने लोगों को मालूम है? होल वर्ल्ड इज पजल्ड अबाउट द माइंड. लोग हिमालय में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, साइकोलॉजी, साइकोथेरापिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सबको ले लो, लोग बोलता है मेरा मन भटकता है. इन्होंने सिखा दिया मेरे को कि भाई 5 मिनट तो मेडिटेशन करो. बैठ गया, नक्की किया 5 मिनट जाना नहीं चाहिए, उसके पहले 25 जगह पे चला गया, पकड़ के लाओ, उसके पहले तो भागा भाग कर. तो लोग बोलता है मेरा मन भटकता है. एक प्रोफेसर आए थे, वेरी एकम्प्लिश्ड, बहुत ऊंची पोजीशन पर थे, ज्ञानी पुरुष को बोलता है मेरे पास सब कुछ अच्छा है, मगर ये मेरा माइंड बहुत हाइपर एक्टिव है, चैन से बैठ नहीं देता है, आप उसको जरा बंद कर दीजिए तो आई विल बी वेरी हैप्पी. मतलब कर देता हूँ, 5 विटनेस की सही लेके आइए. अरे ये सब मेरे फ्रेंड है, अभी सही कर देंगे, कौन नहीं करेगा. आप एब्सेंट माइंडेड हो जाओगे, चलेगा? अरे नहीं 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 नहीं, घर में फिरेंगे. सो मन का विज्ञान समझने जैसा है कि लोग मन के विचार को रोकने की कोशिश करते हैं, और ध्यान की एक डेफिनेशन ऐसी देते हैं, विचार नहीं आते उसका नाम ध्यान है. वो गलत बात है. कितने समय आप रह सकते हैं, और वो ठीक नहीं है. क्यों? और मन वश करना, वो क्या बात है? तो बोले मन में 2 पार्ट है, द्रव्य मन और भाव मन. द्रव्य मन मीन ग्रॉस माइंड, और भाव मन जो अंदर मेरा नया बन रहा है. तो द्रव्य मन का स्वभाव क्या है? यदि आपके मशीनरी का मैं स्वभाव नहीं जानता हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा. मशीनरी मेरी उंगली को काट देगी. तो बोले मन निरंतर चलती हुई फिल्म है. वो फिल्म का तो 3 घंटे पर दी एंड आता है, मन का डेथ तक, अरे अगले जन्म में भी चलती है. सो मन थॉट्स आफ्टर थॉट्स आफ्टर थॉट्स आफ्टर थॉट्स दिखाते ही रहेगा. मुझे जानना है कि मन का उपयोग कैसे करना है, मन के साथ कैसे रहे. तो बोले हमारे ध्येय के अनुसार के विचार में हाँ की सही करें. सुबह से शाम तक कितने ही विचार आते हैं, कितने लोग रास्ते पर से जाते हैं, आप क्या देखने, मैं क्या देखने के लिए नहीं, मगर मेरे पहचान वाले आने वाले हैं का, हाँ कम ऑन. सो जो विचार तो काफ़ी आते हैं, यूजफुल यूजलेस आते रहेंगे. अपने काम के विचारों में हाँ की सही करो, अपने हित में है. बाकी सब विचारों को जाने दो, इग्नोर की 1. अच्छा मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, या तो क्या? दूसरी चीज उन्होंने बोला मन हमें चलाता है. टू सम एक्सटेंट यस, अनलेस आई नो. ये तो रमुज की बात है. घोड़ा मुझे चलाता है, घोड़ेसवार को, गाड़ी को, कि गाड़ी घोड़े को चलाती है? कौन किसको चलाना चाहिए? इफ आई डोंट हैव द आर्ट एंड साइंस हॉर्स का, तो वो मुझे खेत के ले जाएगी. यदि मेरे पास साइंस है तो हॉर्स विल सर्व मी. सो बोलते हैं कि हमारी सही बिना मन हमें घसीट के ले नहीं जा सकता है. अनलेस देयर इज अ पार्लियामेंटरी सिस्टम गोइंग. भारतीय बहन सही नहीं करेंगे तब तक आपका डिपार्टमेंट ऑर्डर पास नहीं होगा. तो बोले अंदर मन बुद्धि चित अहंकार की पार्लियामेंट चल रही है. हमारी अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम विवेक बुद्धि बोलते हैं, जब तक सही नहीं करेंगे मन अकेला हमें घसीट के ले नहीं जा सकता है. तीसरी चीज बहुत परेशान कर रहा है, बहुत नॉइज आ रही है, आप क्या करते हैं? आईपॉड आईपैड लगा देते हैं कि भाई चलो. तो एंगेज योर सेल्फ इंटू समथिंग पॉजिटिव, समथिंग सीरियस, समथिंग इंस्पिरेशनल, कि ताकि नेगेटिव विचार पसार हो जाए, पॉजिटिव में आप जुड़ जाइए. इससे भी आगे बुरे विचारों के लिए आप शक्ति मांग सकते हैं. और मन वश करने मैंने क्या, ये फिल्म जो चलती रहती है, कुछ सीन मुझे नहीं पसंद है, क्या मैं स्क्रीन के साथ लड़ने के लिए जाता हूँ? बैठे रहता हूँ, या तो आंख बंद करके थोड़ी नींद ले लेता हूँ. तो बोले मन को देखते रहना वो मन वश करने का सबसे अच्छा उपाय है. वही ध्यान है, वही चीज है. अभी मन को देखते कैसे रहे? 2 सिंपल थिंग्स. मेरे पास मैं खुद कौन हूँ अभी दृष्टि नहीं है, तो मैं क्या यूज करूँगा? तो बोले आप समुद्र किनारे तो जाते हो ना, दूर किनारे पर खड़े हो कितना मजा आता है, टाइड्स एंड एप्टाइड्स एंड चल रहे. अंदर गए तो डूब गया. स्टेप बैक एंड सी, दूर होके देखते रहिए.
और यदि मैं खुद कौन हूं मैंने जाना, तब मैं जानूंगा कि मेरा स्वभाव ज्योति स्वरूप देखने जानने वाला है। मन फिजिकल ज्ञेय दृश्य है, वो एक चलती हुई फिल्म है, काया थिएटर है, मन चल रहा है, मैं देखने जानने वाला हूँ। दैट विल बी माई परमानेंट रिलेशन विद द माइंड। सो मन को अपने स्वभाव में रह के देखने जानना, वो मन वश करने का अल्टीमेट उपाय है। ज्ञानी यही रास्ते से चले हैं। मन की शक्ति अपार है यदि आप ध्येय तय कर सकते हैं। बस एक 3-4 मिनट लूंगा फिर क्वेश्चंस के लिए। चित्त, मन से इंपॉर्टेंट चित्त है। लोग कहते हैं कि मेरा मन इंपॉर्टेंट है, मगर मन तो सिर्फ थॉट्स बताता है, फिजिकल है, वो पॉजिटिव, मगर चित्त है। चित्त इज वर्ड हैज कम फ्रॉम चेतन। मेरी आत्मा की शक्ति को जो लेके जाता है वो चित्त है, जिसमें भी वहां वो। यदि मैं कोई चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ चित्त को, तो 8 मिनट के बाद वो चित्त मेरे पास ड्रॉ होके भी आ सकती, इतना पावर है। ये रेकी वगैरह चित्त शक्ति का एक फैसेट है। यहाँ बैठे बैठे मैं, मेरा चित्त यदि शुद्ध है, एकाग्र है, तो दुनिया के कोने में किसी को मैसेज भी भेज सकता हूँ। कोई भी कार्य में चित्त की हाजिरी वो सबसे बड़ा ध्यान है। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ, हमारा चित्त। अच्छा, एक और साइंटिफिक इंक्वायरी, आप घर जाके या तो अभी बाहर निकल के अपने आप को पूछना कि चित्त कितने समय यहाँ रहा, कितने समय बाहर भटकने गया। और फिर मंदिर में या मेडिटेशन क्लास में जाके पूछना कितने समय वहाँ रहता है, कितने समय बाहर भागता है। कुछ नहीं करते हुए भी चित्त यहाँ रहता है, उसका भी एक सीक्रेट है। क्यों, बताता हूँ। तो बोले कोई भी कार्य में चित्त की हाजिरी वो सबसे बड़ा ध्यान है। उसके ऊपर से तो माइंडफुल लिविंग का कोर्स निकाला अमेरिका वाले ने, वो सब लोग हमारा ही ले जाते हैं, मगर पैकिंग उनकी पैकेजिंग में करके बड़े बड़े कोर्स बना देते हैं, और हम इधर के इधर रहते हैं। आहार लेते समय चित्त को हमेशा हाजिर रखिए। खाना खाते समय कम से कम चित्त को कहीं पर भी नहीं जाने दे। नो मोबाइल, नो टीवी, नो फोन्स, नो कॉल्स। 10 मिनट के लिए बोल दीजिए कि भाई ये मेरा चित्त यहाँ रहेगा। देन यू विल एंजॉय, यू विल हैव द बेस्ट बेनिफिट, यू विल बी हेल्थियर। यदि खाना खाने के समय चित्त हाजिर नहीं है तो हाइपरटेंशन आएगा। योग का मूल एक, योग के 3 पर्पस है। उसका एक पर्पस है चित्तवृत्ति निरोध, दूसरा है समत्वम योगम, तीसरा है आत्मयोग, आत्मा से जुड़ना। मगर क्या मैं मेरे चित्त को, भटकते हुए चित्त को रोक सकता हूँ? कौन रोक सकता है? तो दूसरा साइंस है उसके लिए। क्या साइंस है? बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, वो देगा नहीं, मगर मैं किटकेट दूंगा तो चॉकलेट छोड़ के किटकेट ले लेगा। मीनिंग देयर बाय कि मैं चित्त को यदि बेहतर सुख की अनुभूति करवा सकता हूं, तो चित्त इंफीरियर में से निकल के बेहतर में जुट जाएगा। सो मेरा चित्त कई सालों से बेचता हूं तो भी बाहर नहीं जाता है। कोई फिल्म की टिकट देता है तो भी नहीं जाता है, नहीं तो खरे लेके जाता है तो मैं आंख बंद करके अंदर चला जाता हूं, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस द बेहतर सुपीरियर हैप्पीनेस। सो यू फाइंड आउट व्हाट इज योर सुपीरियर हैप्पीनेस फॉर यू। और अल्टीमेट जब निज स्वरूप का शुद्ध, अपने स्वरूप का सुख मिलेगा, तो बाहर भटकता हुआ चित्त निज घर में आके स्थिर हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने जो गोवाल की बात की, वो फिजिकल गाय तो थी, मगर गो का दूसरा अर्थ इंद्रिय है, चित्त वृत्तियां है। उनके पास ऐसी विद्या थी खुद के आनंद की कि बाहर भटकती वृत्ति अपने आप निज घर में आके बैठ गई थी। क्या हुई थी? तो अपने लिए, इसीलिए मैंने पहले शुरुआत की सेल्फ से कि भाई वो जानोगे तो ये सब बाकी का मैथमेटिक्स आपके लिए बिल्कुल लेफ्ट हैंड प्ले हो जाएगा। तो भीतर आनंद की अनुभूति से चित्त का भटकना कम होगा। अहंकार, थोड़ी बात इसको भी करनी चाहिए, नहीं तो अहंकार को बुरा लगेगा कि मैं हूँ यार, मुझे रिकॉग्नाइज करते हो, बाकी सब कुछ फेल है, मेरे अलावा कुछ सही नहीं है। तो मैं नामधारी हूँ। अहंकार की शुरुआत कहाँ से? मैं शैलेश हूँ। क्या है? मैं खुद कौन हूँ जानता नहीं, इसलिए मेरा आरोपित है। तो फैपा ने नाम दिया था, नाम ही निकालेंगे, मगर मेरी बिलीव क्या हुई? मैं ही शैलेश हूँ। फिर तो आगे आगे बहुत चला, मैं सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो एग्जिस्टेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग। अभी जहाँ तक अहंकार का 3 फेसेट्स है। किसी को दुख पसंद है तो नेगेटिव उपयोग करो। आपके पास जो सत्ता है, मेमो दो, स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन एम्प्लॉय करो, निकालो, डांटो, जो भी करना है करो। आपको सुख पसंद है तो पॉजिटिव उपयोग करो। लव, केयर, शेयर, टेक केयर। वो एम्प्लॉयज की भी केयर ले सकते हैं, कलीग की भी ले सकते हैं, मनुष्य जीव मात्र की ले सकते हैं। और परमानेंट सुख चाहिए तो ट्राई टू गेट फ्री ऑफ इगोइज्म, अहंकार मुक्त स्टेट। वो हो सकता है क्या? जरूर से हो सकता है। कैसे? बहुत सिंपल। अच्छा, सभी मनुष्य अहंकार के विभिन्न स्वरूप हैं। एक नक्की करता है मुझे देश को ये करना,
ये बात चलता है, कोई कहता है ये करना है, वो चलता है। और आइंस्टाइन, ईगो इज इक्वल टू 1 upon नॉलेज। कितना ईगो होगा, जितना नॉलेज कम उतना ईगो ज्यादा, जितना नॉलेज पूरा तो ईगो कम। यहाँ कौन से नॉलेज की बात कर रहे हैं? नॉलेज ऑफ माई प्योर सेल्फ। यदि मेरे पास, तो अभी मुझे क्या रहता है, मैं शैलेश हूँ, मैं ना नहीं बोलूँगा, मैंने सर्जरी की ना नहीं बोलूँगा, मगर अंदर मैं समझता हूँ कि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो जब मेरा आई शुद्ध में बैठता है तब वो अहंकार नहीं कहलाता है। सब अहंकार से मुक्त होना है तो खुद को जानो। और अभी मुझे अंदर से ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, सो मैं खुद कौन हूँ और कर कौन रहा है, तो ये अहंकार से भी मुक्त हो सकते हैं। व्यवहार में सुखी होने की दूसरी मास्टर की एडजस्ट एवरीवेयर के साथ, यदि आपको सुखी अकेला नहीं, भारती बेन नोज द हार्ट कि सबसे अच्छा काम लेना है तो क्या करना चाहिए? सबके अहंकार को थोड़ा सा पुष्टि दे के आगे चलो, किसी के अहंकार को दुखाओ मत, नहीं तो वो कुर्सी के पीछे बम फोड़ेगा, क्या करेगा? सो दो ही चीज है, किसी को अहंकार को पोषो या भग्न हो। किसी को के अहंकार को भग्न करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। ओपिनियंस, मैंने जब मुझे अंदर समझ आई तो मैं धीरे धीरे देखने को बैठा कि मुझे कहाँ का ओपिनियन है। आई रियलाइज दैट एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं थी कि जिसके लिए मेरे अंदर ओपिनियन नहीं थे। छोटे बड़े सबके लिए ओपिनियन थे। और फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे नेगेटिव ओपिनियन भारती बेन या उनको कुछ नुकसान नहीं करने वाले, मुझे नुकसान कर रहे हैं, और मेरे पॉजिटिव ओपिनियन उनको हेल्प नहीं करे, मुझे हेल्प करे। सो ओपिनियंस आर आवर ओन बाइंडिंग, बीवेयर। और लास्ट स्लाइड ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, कि भाई ये मटेरियल है मैटर और ये चेतन है, ये ह्यूमन लाइफ क्या है, दोनों नजदीक आ गए। दोनों में से एक ने भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं गंवाई है, मगर तीसरी एक्स्ट्रा स्पेशल प्रॉपर्टी खड़ी हो गई, जिसे मिक्सचर कहते हैं हम। Both the elements retain their original properties and the third extra special properties come up, and that is I am। प्रकृति जो पूरी हुई है, खड़ी हुई है, वो दोनों के सामीप्य भाव से हुई है। शुद्ध चेतन के अपने गुणधर्म है, वो नॉन मटेरियल है, मैटर के अपने गुणधर्म है, दोनों ज्ञानी पुरुष जानते हैं इसको हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज। सो थैंक यू वेरी मच। स्पीच का है, बट अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए समय चाहिए, इसलिए स्पीच या कुछ बाकी रखूंगा तो आप मुझे बुलाओगे। बट मेरी छोटी सी विनंती कि सार मेरा तो बहुत भाव था कि मैं वापस, आप नहीं बुलाओ, हम आपको बुलाएं। हम तो आपको ओपन इनविटेशन देके भी गए थे, खटखट भी किया था कि वी विल होस्ट यू। हम फ्रेंडली आपको बुलाएं, जहां भी आप इच्छो हम बुलाएंगे। किलनपुर आना है तो किलनपुर इज अ वेरी नाइस प्लेस, यू कैन स्टे ओवरनाइट। और यदि आनंद न हो तो कॉम्पेंसेशन मैं दूंगा, आनंद हुआ तो तुम्हारा लाभ, तुम्हारा नुकसान मेरी लायबिलिटी। यू आर वेलकम। ऐसे ही हंसते रमते हम आगे बढ़ सकते हैं। और वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है तो भी जा सकते हैं, आते समय भी आप और विश्वास रोक सकते हैं, या तो सिटी में कहीं पर मिलना है। सी दिस इज एन ऑन गोइंग जर्नी। साल में एक बार मिल गए वो तो अच्छी बात है, दैट्स गुड, दैट्स समथिंग पॉजिटिव। बट मैं तो ऐसा समझता हूँ, हम लोगों को बोलते हैं कि भाई तू मुझे आया ना, फिर मेरे कई पेशेंट साल के बाद आते हैं। मैं बोला यार पूरी साल तो खो गया, फिर आके बढ़िया क्यों करता है यार। दिस प्रिस्क्रिप्शन है सर्टन क्या बोलते हैं फॉलोअप्स होते हैं। सो जस्ट हंसते हंसते करता हूँ कि एक मैत्री खड़ी हुई है, कुदरत ने हमको साथ में लेके आई है। हम एक और नाते से मिले हैं जहाँ मटेरियल गेन का नाता नहीं है। मैं कुदरत को प्रार्थना करता हूँ, आप सबके अंदर को भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम मिलते रहे। और इनफैक्ट आई विश कि आप लोग ज़्यादा बात करो, आप लोग ज़्यादा प्रश्न पूछो, मैं सिर्फ इंटरैक्टिव बात करूँ। मगर ये क्या होता है कि प्रेजेंटेशन तो करना पड़ता है। सो वी आर ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू। हाँ प्लीज प्लीज। જે આંતરિક ક્લેશ, મન, ચિત્ત, ઈગો એ કોરિલેટેડ છે, બધું કોરિલેટેડ છે। હવે આંતરિક ક્લેશ જે છે હોય છે દરેકમાં, જી આપણે ઇલેબોરેટ કર્યું મેં કેવી રીતે ઓવરકમ થાય, છતાં પણ થોડું ઘણું વધારે કે કેવી રીતે હાઉ વી કેન ઓવરકમ। ચોક્કસ, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન, વેરી પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન। બે સ્ટેજ, એક મેં કહ્યું ને કે ઇનકરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ,
સે આ જે રીતે બધા જ સાયન્સ છે ને એવી રીતે આપણી લાઈફ પણ એક સાયન્સ છે. એમાં હું છું, મારા માઇન્ડ બોડી સ્પીચ છે, ઇનર હેપનિંગ્સ છે, આઉટર હેપનિંગ્સ છે. તો પછી એ બધું બાય ચાન્સ ગમે તેમ ચાલે છે કે રૂલ્સ છે? તો કે ના, એ આખું વિજ્ઞાન છે, એમાં નેચરલ લોસ બધું આવે છે. જેમ જેમ હું સમજતો જાઉં છું એમ દરેક વસ્તુનું મને અંદરથી લાઇટ મળે છે, એક સમજ મળે છે. તો કે છે જ્ઞાની પુરુષે બે જ વસ્તુ કીધી કે અધૂરી અથવા અવળી સમજણ, ઇનકરેક્ટ ઓર ઇનકમ્પ્લીટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વિલ લીડ ટુ ઓલ ધીસ ક્લેશિસ. આ બધું કરેક્ટ ઓર કમ્પ્લીટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વિલ રિઝોલ્વ એવરીથિંગ. હવે એના 2-4 દાખલા જોઈએ. એટલે એક તો સવળી સમજણ વિજ્ઞાનની. બીજી મેં અલ્ટિમેટની વાત પહેલા કરી કે જો મને હું કોણ છું એ મળી જાય છે તો મોટા ભાગના ક્લેશમાંથી હું બહાર નીકળી જઈશ. ક્લેશ આમાં થશે પણ હું બહાર હોઈશ. શું હોઈશ? અને જ્યારે હું બહાર હોઈશ ત્યારે બધા જ પઝલને સારી રીતે જોઈ બી શકીશ ને સોલ્વ બી કરી શકીશ. હું જ દર્દી હોઉં તો ટ્રીટ કરી શકું, પણ હું દર્દીથી જુદો હોઉં તો ટ્રીટ કરું ને. એટલે વન્સ આઈ ગેટ આઉટ ઇન ટુ માય પ્યોર સેલ્ફ, દેટ ઇઝ અલ્ટિમેટ. એટલે 2 સ્ટેજના સોલ્યુશન આપું છું. એક સવળી સમજણનો પાર્ટ, એક હું કોણ છું એ અલ્ટિમેટનો પાર્ટ. પણ એ સહેલો છે, અલ્ટિમેટનો પાર્ટ અઘરો નથી. ખૂબ સહેલામાં સહેલું હોય તો હું કોણ છું એ જાણવું છે. પોતે પોતાની જાતને ઓળખવાનું અઘરું હોય કે સહેલું હોય? પોતે પોતાના ઘરે જવાનું અઘરું હોય કે સહેલું હોય? આ તો શાસ્ત્રોએ અઘરું કરી મૂક્યું છે, ખૂબ સહેલું છે. હવે વ્યવહારમાં સવળી સમજણ એટલે આજે એક વ્યવહાર વિજ્ઞાન કે ભાઈ અથડામણ ટાળો, એડજસ્ટ એવરીવેર, આ બધી વ્યવહારની સમજણો મને કામ લાગે છે. પણ એમાં સૌથી મોટી સમજણ મને એ કામ લાગી કે મારા મનવાણી કાયાથી જો બીજાને દુઃખ પહોંચશે તો મને થશે, બીજાને સુખ પહોંચશે તો મને થશે. એક. બીજું કુદરતી નિયમ. હવે મને અસમાધાન ક્યાં થાય છે? હું તો ચાલો સારી રીતે બિહેવ, મને સમજણ પડી હું તમને દુઃખ નહીં આપું, પણ તમે આપો છો, તમે મારા હકનું આપતા નથી, ત્યારે મારા મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારને કેવી રીતે સમજાવવા? એના માટે બીજી હતી મારી પાસે સ્લાઇડ, પણ હવે ઘડિયાળ ચાલે છે ને, એટલે એના માટે કુદરતી નિયમ જાણવા પડે. કયા કુદરતી નિયમ? 2 છે, સરસ છે. તો કે આપણે ત્યાં પોસ્ટમેન બધી પોસ્ટ નાખી જાય છે, 2 ભૂલી ગયેલા શેરનું ડિવિડન્ડ આવે છે, એક ભૂલમાં ટ્રાફિકની લાલ લાઈટ તોડેલી મને ખબર નથી તો દંડ બી આવી ગયો, અને એક ભારતીબેને મેમો મોકલેલો તે બી આવી ગયો. ના ભારતીબેન નથી મોકલતા એટલે તો એમની જોડે મસ્તી કરી શકે. તો 2 સુખ આપે છે, 2 દુઃખ આપે છે. કોઈ દિવસ આપણે પોસ્ટમેનનો વાંક કાઢ્યો? કેમ? તો પોસ્ટમેન કે હું શું કરું ભાઈ, હું તો ખાલી ડિલિવરી ઇન્ટરમીડિયેટ માણસ છું, તમારું ડિલિવરી કરી. તો કુદરતનો નિયમ એક એવો છે કે મારા અણુ પરમાણુઓ જે ટાઈમે જે ફળ આપવા માટે રાઈપ થાય છે, કુદરતની આખી મિકેનિઝમ અટમોસ્ટ એક્યુરસીથી કામ કરે છે. ફ્રેક્શન ઓફ અ સેકન્ડ, ફ્રેક્શન ઓફ અ મોલિક્યુલ. આપણે બધાનામાં ભૂલ થઈ શકે, ગમે તેવા માસ્ટર કોમ્પ્યુટર બનાવ્યા હોય, ગમે તેવી માસ્ટર ન્યાયની, એમાં ભૂલ થાય. કુદરતની સિસ્ટમમાં ભૂલ નથી. એટલે કુદરતની સિસ્ટમ શું કરે છે? પોસ્ટમેન મોકલે છે. મારા અણુ પરમાણુ સારા સુખદાયી હોય તો તમારા જેવા સારા માણસને મને મોકલશે, અને મારા અણુ પરમાણુ અત્યારે દુઃખ આપવા માટે ભેગા થયા હોય તો એવું પોસ્ટમેન મોકલશે. કેમ બધાના ખિસ્સા નથી કપાતા રોજ? આપણે લાખો લઈને જતા હતા ત્યારે કશું નહોતું થયું, અને એક દાડો થોડાક જ લઈને કપાય, ગજવું દાબી રાખ્યું હતું તો કેમ કપાય? તો કે દેર ઇઝ અ રૂલ, દેર ઇઝ અ પરફેક્ટ સિસ્ટમ ઓફ નેચર. એટલે શું સમજવાનું? તો કે ડુ યોર બેસ્ટ એકોર્ડિંગ ટુ બેસ્ટ ઓફ યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કેર, કોશન એન્ડ એબિલિટીઝ. પછી બને તે પછી એટલું જ સમજવાનું કે બન્યું તે કુદરતનો ન્યાય છે. આટલું જો મને હાજર થાય તો મારું અંદરના બધા ક્લેશ સમી જાય. શું થાય? એટલે દાદા ભગવાને એક વાક્ય આપ્યું કે બન્યું તે જ ન્યાય, અથવા બન્યું તે વ્યવસ્થિત છે. હવે આપણે 2 ખોટ 3 ખોટ ખાઈએ કે ના ખાઈએ, એક ગ્લાસ ફૂટી ગયો એટલે આપણો મૂડ ખરાબ થાય, આપણો ખરાબ થાય એટલે આપણી વાઈફનો ખરાબ થાય, છોકરાઓ સમજી જાય કે આજે કંઈક સમથિંગ ઇઝ નોટ ગુડ. ગ્લાસ તો ગયો તો ગયો, કેટલી વધારાની ખોટ ગઈ. જ્ઞાનીઓ શું કહે છે? એક ખોટથી અટકી જાઓ. પણ એક ખોટથી ક્યારે અટકાય? કંઈક કરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલે આ એક કરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી કે કુદરત કેવી રીતે કામ કરે છે, શું કરે છે. બીજી કરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શું છે? તો કે મને સુખ આપનાર અને દુઃખ આપનાર બંને પોસ્ટમેન છે. તો પછી હું કોઈનો વાંક કાઢીશ ખરો? મારું દુઃખ બીજાની ભૂલ જોવાથી ઊભું થાય છે. શું થાય છે? આણે આ ભૂલ કરી, આણે આમ ખોટું કર્યું, આણે આમ કર્યું, એ મને પહેલું દુઃખ આપશે. પણ જો હું જોઈ શકીશ કે તો કુદરતની સિસ્ટમના આધારે કામ કરી રહ્યા છે, કોઈ જીવ બીજા કોઈ જીવને હેરાન કે મદદ કરવા સ્વતંત્ર નથી. શું છે? એટલું જો મને સમજાય તો મારું બધું દુઃખ મટી જશે. એટલે ટૂંકમાં
કરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટ ડિફરન્ટ લેવલ્સ. અને હું તો એમ કહું છું કે અધૂરું ભાણું શું કરવા ખાવાનું, પૂરું ખાવ ને યાર. તો હું કોણ છું એનો આનંદ. એટલે દાદા ભગવાને એ કર્યું, પહેલાં સુખ્યા કર્યા લોકોને કે આ બિચારા દુઃખી પઝલમાં સવારથી સાંજ સુધી 1760 પ્રોબ્લેમ છે, એમાં ક્યાં બધું સમજને હાજર રાખશે. પહેલાં સુખ આપો એમને કહે છે. શું કરો? એમનું ચિત્ત ઠરશે, સુખી હશે, સ્થિર થશે, બાકીનું બધું અજવાળું આપોઆપ કામ લાગશે. શું કરશે? એટલે પહેલાં એમણે મોક્ષમાં લોકોને સુખ આપ્યું, પછી આ બધી સમજણ અમને શું ભાન હોય 18 વર્ષની ઉંમરે, પણ આ બધું અંદરથી કામ લાગ્યું. વેલકમ વેલકમ. એ તમારો અધિકાર છે એવું રોકી દેવાનો. મેં પહેલાં જ કીધું કે બી ઇન્ફોર્મલ, બી ફ્રેન્ડલી, બી ફ્રેન્ડ, કે તો જ આનંદ આવે. હા પ્લીઝ. હા, ભારતીબેનની પરમિશન. શ્યોર. કોઈ પણ મનુષ્ય કર્મ અને ફળ બે કોરિલેટેડ છે. જી બરાબર છે. હવે દરેક મનુષ્ય ગમે તે કર્મ કરે એનું ફળની ચિંતા કરવી કે ના કરવી. અચ્છા, ફળ આપનાર કંટ્રોલિંગ પાવર, ઓથોરિટી પાવર એક છે જે અજાણ છે. તો હવે જે કંટ્રોલિંગ પાવર, ઓથોરિટી પાવર જે છે એને જ કંઈક આપણે સારી રીતે ટેકલ કરીએ કે ખુશ રાખીએ, વેધર ડેટ ઇઝ ધ ફાઇનલ સોલ્યુશન. વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. ભારતીબેન બહુ જ સંક્ષિપ્તમાં જવાબ આપું છું, પણ આ બીજો એરિયા છે ફરી આપણે ભેગા થવા માટેનો. કર્મ અને કર્મ ફળ લોકો યથાર્થ રીતે સમજી શક્યા નથી. કર્મના બે ભાગ છે. એક ફળ આપવા તૈયાર થયેલું એટલે કે ઇફેક્ટ સ્વરૂપ, અને બીજું છે બીજ અથવા કોઝિસ સ્વરૂપ. અને એટલું તો આપણને સમજાય કે આપણે ઇફેક્ટ અથવા ફળને કદાચ તરત મોડિફાઈ ના કરી શકીએ, પણ કોઝને અથવા બીજને મોડિફાઈ કરી શકીએ છીએ. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને જે ગીતામાં કીધું કર્મણ્યેવ અધિકારસ્તે, એ લોકો સમજી શક્યા નહીં. હવે લોકો શું સમજ્યા કે હું રોજ 9:30 મારી ક્લિનિક રેગ્યુલર જાઉં છું, પંક્ચ્યુઅલ છું, એ મારું કર્મ છે. પછી જે બને પેશન્ટ આવે ના. ક્યારેક એવું બને છે કે મારે ઘેર મધર માંદા થઈ ગયા હોય, મારે આખું સેશન કેન્સલ કરી નાખવું પડે. ક્યારેક બીજે કશે ફસાયો હોય, આખું સેશન કેન્સલ કરવું પડે. તો કે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું કે મારો અધિકાર ક્યાં છે, હું શું મોડિફાઈ કરી શકું એવું છું. તમે જે કહો છો ને, તો કે છે કે જીવનનો જે ભાગ જેમાં સંયોગો ભેગા થઈને વિખરાઈને બને છે, ઇનર એન્ડ આઉટર સર્કમસ્ટન્સીસ. મારે તો બહુ મળવું છે આપને વર્ષ કરતાં વહેલું, કેમ વર્ષે જ મળી શક્યો? સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ ઇઝ ડિસાઇડિંગ ઇટ. મારા હાથમાં નથી. એટલે કે છે કે આ જે જીવનના બે ભાગ છે, એક હેપનિંગ્સ વાળો ભાગ જેમાં અંદરના અને બહારના સંયોગો ભેગા થઈને કામ કરે છે, એમાં હું સ્વતંત્ર નથી. હું છું ખરો, પણ આઈ એમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ડુઅર, આઈ એમ નોટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડુઅર. અને આ જગતમાં એવો કોઈ જન્મ્યો નથી કે જેનો બધા જ સંજોગ પર કંટ્રોલ કે કમાન્ડ હોય. જો હોત તો કૃષ્ણ ભગવાન યાદવા સ્થળી તો ના જ થવા દેત, મહાભારત થવા દેત, પણ યાદવા સ્થળી ના થવા દેત, અને બાણ પણ ન વાગવા દેત. કદાચ વાગવા દેત કે નહીં મને ખબર નથી. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે કે આ સંયોગો વાળો ભાગ એ ઇફેક્ટ સ્વરૂપ છે, ફળ સ્વરૂપ છે. એ ફળ આપનારી એક નેચરલ રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ છે, પણ એ નેચરલ રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ કમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ છે. લેન્ડ છે, આપણો વ્યક્તિગત કોમ્પ્યુટરો એ લેન્ડ સિસ્ટમ જોડે કનેક્ટેડ છે, એ ઇમ્પાર્શિયલ છે, એની પોતાની કોઈ વિલ નથી. આપણા બધાના ઇનપુટ્સ જે ગયેલા છે એના આધારે, નેચરલ લોઝના આધારે રિઝલ્ટ આપે છે. તો પછી બદલવાનું શું? બે વસ્તુ. પહેલું બદલવાનું સીડ, કોઝ. તો કે સીડ અથવા કોઝ ક્યાં પડે છે? તો કે આમાંથી પસાર થતાં થતાં અંદર જે નવા ભાવાભાવ થાય છે. હવે આપણે આ 50 જણ અહીં બેઠા છીએ, અહીંથી બહાર જઈશું ત્યારે બધાના અંદરના ભાવ સરખા હશે કે અલગ અલગ? બધાની સિગ્નેચર સરખી હશે કે અલગ અલગ? હવે જ્યાં હું અંદર ભાવાભાવમાં સહી કરું છું કે ભાઈ ફરી સાંભળવા જેવું છે, અથવા જવા દો ને, આ તો એક વર્ષ વખતે બોલાવે, ભારતીબેનનું માન રાખવા જવું પડે, ફરી કંઈ ટાઈમ છે નહીં. તો અંદર જે હું સહી કરું છું ભાવમાં, ત્યાં બહારથી એટમ્સ અને મોલેક્યુલ્સ એટ્રેક્ટ થાય છે, બહાર ન્યુટ્રલ છે, અંદર ચેતનની હાજરીમાં મારી સિગ્નેચર થાય છે, ત્યાં ચાર્જ થાય છે, એ સ્ટોર થાય છે. ત્યાં ટેરાબાઇટ્સની તો કોઈ વિસાત નથી, એટલું બધું આત્માના પ્રદેશો પર સ્ટોરેજ છે. એને કોઝલ બોડી બને છે અને એ નેચર જોડે લિંક થાય છે. નેચરની સિસ્ટમનું કામ એવું છે કે સમય પરિપક્વ થાય ત્યારે બધું ભેગું કરીને ફળ આપવું. એટલે પહેલામાં પહેલું જો હું બદલી શકતો હોઉં તો મારે મારું કોઝિસ બદલવું જોઈએ. તો કે કેવી રીતે બદલું, એટલું બધું કેવી રીતે ધ્યાન રાખવું? જ્ઞાની સીધી વાત કરે છે, ચશ્મા બદલીશ તો દુનિયા બદલાઈ જશે. એટલે કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બદલાશે એટલે ભાવ બદલાશે, ભાવ બદલાશે એનો ભાવ બદલાઈ જશે. તો કે અંદર મારી સ્વતંત્રતા ભાવમાં છે, હું ઇઝીલી ચેન્જ કરી શકું. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કે એ કર્મમાં હળવાશ લાવવા શું કરવાનું?
વરસાદ પડતો હોય તો છત્રી લેવાની, મારી પાસે ના હોય તો શ્રેયને કહો ભાઈ આપને કે રેનકોટ આપ. દેર આર વેઝ કે કર્મનો ભોગવટો હળવો થઈ શકે છે, એક્સેપ્ટ વેરી ફ્યુ રેર થિંગ્સ. તો કે કેવી રીતે થઈ શકે? એક, કરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી ઘણા બધા જે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનની ગરબડો છે, જે એકબીજાનું, એ તો કરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી જ ઉડી જાય છે. 90% કર્મો મારી સમજણ ફેરફાર થવાથી ઉડી જાય છે. સંજોગો આપણને સુખ કે દુઃખ આપે છે તો કે ના, સંજોગોને જોવાની દ્રષ્ટિ, એટલે કે કરેક્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી ઇવન ફળ આપનારા કર્મો પણ, યા પ્લીઝ બસ 30 સેકન્ડ એ બદલી શકાય છે. બીજા બધા ઉપાય છે, ત્રિમંત્ર ને બીજા બધા, પણ સમ અધર ટાઈમ ઓર પર્સનલી. સોરી એન્ડ થેન્ક યુ બોથ. It was really very enlightening and it was एक दो लाइन बस बोलूँगी मैं आपको. मैंने जो पूरा सार निकाला कि अगर दिल में बहुत कुछ रखा हुआ है, दिल में अगर बहुत कुछ रखा हुआ है तो दिल खोल के कब जियोगे. मेरे ख्याल से शैलेश, डॉक्टर शैलेश, he also tried to explain this thing that one should drain out every negative thing from their mind and their from every perspective, and he has shown us a very good path also. Sir, I think you need at least 2 hours. I am sorry that I couldn't give that much of time, but it was really nice, and there are so many things, so many words, small words. He talked about swasth, he talked about I and my. Even I took a lot of things, but now because of the time scarcity I have to मैडम, that is the solution. आप लोग हमारे जिनको इंटरेस्ट है, नहीं, but I'm really happy. No sir, we will keep one more session of yours, and there we'll give time limit of 2 or 2.5 hours, and then beforehand we'll get some questions also. Yeah, that is we'll very- share your profile, and we'll get the questions beforehand so that you prepare the good answers also, and we'll have a, you can say, two-way communication also. that is more. That is what I have felt this time, that people have many queries, and it's very interesting topic. Even अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो इन्होंने बताया ये सच में होता है. मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर इन लॉ को 4th स्टेज का कैंसर था, 6 months दिए थे उसको. जो भी उसने ट्रीटमेंट तो लिया ही लिया, अभी उसके बाद अभी उसका पेट स्कैन हुआ, उसका सब क्लियर हो गया. उसका मीन इट इज रियल, एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग, बट अगेन so now I will request Kishore bhai to come forward and give simply a token of thanks and love to Shailesh, Dr. Shailesh bhai. व्यवहार दृष्टि से ले रहा हूँ, अगर अंदर से तो हम सब एक ही है, और आपके बिना दिए तो मैंने काफी कुछ ले लिया आपसे, आपको नहीं मालूम. It was a wonderful talk and we thoroughly enjoyed, sir. मैं मतलब मुंह से नहीं बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ. Thank you to everyone for joining us, and hope to see you again and again after every talk. और नेक्स्ट टाइम से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी हम डॉक्टर शैलेश को बुलाएंगे या कोई भी ऐसे स्पीकर को बुलाएंगे, विल गेट सम क्वेश्चंस आल्सो, एंड विल इंक्रीज द टाइम लिमिट आल्सो, सो दैट you can interact, you can have your own queries, and that will be a fruitful session also. Thank you so much.